Hello students, today we are going to study about a new chapter. We are going to start a new chapter, chapter number 2, acid, bases and salts. Okay, at first in this chapter we will study about classification of substance into acid, base and salts, and then tests to distinguish between acid, base and general characteristics of acids. Okay, so students, let's start the chapter. Okay, so as we know, the substances, okay, या फिर we can say the chemical compound. The chemical compounds or the means any substances are the main source of these chemical compound either is from plant and animals or minerals and rocks. Okay, so these are the main sources of chemical compound, plants or animal or mineral and rock. The substances or the chemical compound which are obtained from plants and animal are called organic compound. Okay, and the substances or chemical compound which are obtained from minerals and rocks are called inorganic compound. Okay, done. इतनी बात समझ में आ गई. So the earliest classification of chemical compound was done on the basis of earliest classification of chemical compound either in inorganic or organic. Means earliest classification of chemical compound चाहे वो organic हो या inorganic हो, it was done on the basis of the taste, सबसे पहले taste, and were classified into 3 different categories. On the basis of taste, these organic or inorganic compound can be classified as 3, and that is what called acids, bases and salts. Okay, generally the chemical compounds on the basis of taste classified as acid, base and salts. So now we will study about what are acids, base and salts. So here I am writing in tabular form acids, then bases and then salts. Okay, now listen very carefully. The substances which taste sour. Okay, sour taste, as the substance which have sour taste, खट्टे होते हैं जो, are called acids. Okay, and the substances which have bitter taste are called bases, and the substances have salty taste are called salt. ये तो हो गई general definition. What are acids? The substances which have sour in taste are called acids. The substances which have bitter taste are called bases, and the substances which have salty taste, okay, are called salts. Okay, so this acid word is derived from the word acidus, Latin word acidus, which means sour. Okay, इसीलिए इसका नाम एसिड्स पड़ा. क्यों? क्योंकि एसिडस लैटिन वर्ड है और जिसका जनरल मीनिंग है सार, और द सब्सटेंस विच आर सार are called acids. Examples here:
tomatoes, okay, lemon juice, okay, vinegar. Here the example, baking soda, okay, washing soda, है ना. Here some of the examples are sodium chloride. Everyone knows that common salts, है ना. So common salt that is called sodium chloride. Sodium chloride, okay, or copper sulfate, silver nitrate. So many examples are there, but some of them I am writing here to give an example. Okay, so these are, now listen very carefully. Okay, so the earliest classification of the chemical compound on the basis of taste, which were divided into three categories, that is acid, base and salts. The substances which have sour taste acids, bitter taste base, salty taste salts, and these are some examples. Now the note, the most important thing, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, तो ऐसा नहीं है कि वी हैव टू टेस्ट द केमिकल सब्सटेंस तो फिर पता करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है, ये साल्ट है ना. सो आई एम राइटिंग हियर द नोट, दैट इज व्हाट, इट इज very dangerous. Please do not taste any chemical compound. It is very dangerous, okay, to taste any chemical compound. Then the question is, how can we distinguish between acid, base and salt? कैसे पता करेंगे कि कोई भी chemical compound acid है, base है, salt है ना. सर आपने तो कहा था on the basis of taste. So this classification was done on the basis of taste, but now to check whether the chemical compound is acid, base or salt, we have what, we have some taste, okay, test to distinguish between acids, bases and salts. Okay, कुछ टेस्ट है हमारे पास. We have some chemical compound which are called indicators. क्या बोलते हैं? Indicators. Okay, so with the help of these indicator we can classify the compound, we can distinguish the compound, either it is acid, base or salts, without tasting. With the help of indicator we can do without tasting. Okay, so without tasting, मैं फिर से लिख रहा हूं कि we should not taste any chemical compound. That is why it is a general note. Now here is the thing how we can do the tasting. क्या? Distinguish. Okay, so here heading is test to distinguish between acids and bases. Okay, so there are many substances which show, तो यहाँ दो तरह के indicators are of two type. Okay, so these are called indicator. What are indicators? There are the substances, okay, which show different colors in acidic medium as well as in basic medium. Okay, A category means there are some substances which show a different taste color in acidic. मतलब कि वो एसिड में कोई दूसरा कलर शो करेंगे और बेसिक में कोई दूसरा कलर. सो दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. और दूसरे अनदर टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर स्मेल. Okay,
different smell in acidic medium and different smell in basic medium. समझ में आए? तो दो तरह के इंडिकेटर हो गए, इनको बोलते हैं कलर वाले हैं, ये कलर वाले हैं, और ये स्मेल. ठीक है. ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट. एज इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर इन एसिडिक बेसिक मीडियम, और दूसरा कैटेगरी हमारी इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट स्मेल, ओके, इन एसिडिक और बेसिक मीडियम. ठीक है. तो नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द ए कैटेगरी, दैट इज व्हाट इंडिकेटर्स which show different color. ठीक. अब हम पढ़ रहे हैं एन इंडिकेटर विच शो डिफरेंट कलर. Now listen. So here these indicators are classified as litmus, okay, and phenolphthalein, and methyl orange. Okay, litmus is natural. It is natural indicator, and these two are synthetic. Okay, so the indicators which showing the different color are of two types, natural as well as synthetic. Natural is litmus and synthetic is phenolphthalein and methyl orange. Okay, so how they will show a change in color. ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं. Now we have how they will show the change in color. Okay, so here we have a table. Please make it also. ठीक है. यहाँ indicator. Okay, here it is neutral. When it is neutral, ठीक है, and acidic or basic. So this first is litmus. Neutral color means when the substance is neutral, its color is purple. Okay, when the substance is acidic, so this purple color changes to red. Okay, that means what? Acid turns litmus into red. ओके, एसिड. तो अब हमें पता चल गया एसिड सार टेस्ट तो होता है, वो अलग बात होगी. नाउ द केमिकल सब्सटेंसेज और कंपाउंड विच टर्न्स लिटमस कलर, जो लिटमस पेपर है या सॉल्यूशन है, उसको रेड में अगर चेंज कर देता है, देन इट इज कॉल्ड अ एसिड. ओके, इन बेसिक द लिटमस चेंज टू blue. Okay, now we are here for phenolphthalein. Phenolphthalein is colorless. In neutral it is colorless, कोई कलर नहीं होता है. But in acidic solution it has also retain its remain colorless. But in basic it turns to pink. समझ में आया? तो फिर क्या हुआ, लेट सपोज टेक सम 1 or 2 ml ऑफ HCl, ठीक है, और आपने उसमें 1 ड्रॉप ऑफ फेनोफ्थलीन. कोई कलर चेंज नहीं हुआ, फेनोफ्थलीन का कलर तो कलरलेस ही है, कोई नया कलर नहीं आया. दैट मीन्स व्हाट? इट इज एसिडिक. और अगर आपने बेसिक में फेनोफ्थलीन डाला है, देन इट विल टर्न्स टू पिंक. ओके, नाउ
मिथाइल ऑरेंज. ओके, सो दिस मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल इज ऑरेंज, क्योंकि एज द नेम इंडिकेट ये न्यूट्रल में कैसा कलर है इसका, ऑरेंज. बट इन एसिडिक मीडियम इट टर्न्स रेड. इन बेसिक मीडियम इट्स ऑरेंज कलर चेंज टू येलो. दैट वी हैव स्टडीड द इंडिकेटर विच शो डिफरेंट कलर. ठीक है, समझ आई बात. ओके, सो सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स आई एम ऑल्सो टॉकिंग. टर्मरिक कैसा कलर होता है, येलो. ठीक है, बट इन बेसिक मीडियम इट टर्न्स टू रेडिश ब्राउन. आपके कपड़े पे कभी कोई खाने का डब्बा लग गया हो, येलो कलर का स्टेन आ जाता है, फिर हम उसको सोप से वॉश करते हैं. सो सोप इज अ बेसिक मीडियम, देन इट टर्न्स टू रेडिश ब्राउन. ठीक है, और फिर बहुत ज्यादा पानी से धो देते हैं, दोबारा से येलो हो जाता है. फिर सोप लगाएंगे तो रेडिश ब्राउन. सो दैट मीन्स व्हाट, टर्मरिक आल्सो सो यूज, इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए इंडिकेटर टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज बेसिक. ओके, सो इन बेसिक मीडियम दिस येलो कलर चेंज टू रेडिश ब्राउन. ठीक है, अनदर वी हैव रेड कैबेज. ओके, रेड कैबेज तो कैसा कलर होगा इसका, रेड होता है. न्यूट्रली इट इज रेड. ठीक है, जैसे टर्मरिक येलो होती है तो रेड कैबेज की लीव्स कैसी होती हैं, रेड. ओके, बट इन एसिडिक इट रिमेन्स रेड, बट इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में कैसी हो जाती है, ग्रीन. ठीक है, दिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू चेक ओके whether the substance is basic. Okay, now another is hydrangea. Okay, so this is what another plant, flower of this plant. flower ले लो आप उसका, उसको क्रश कर लीजिए और उसकी ड्रॉप्स निकाल लीजिए. ठीक है, उसका. ठीक, then it is normally it is of blue color, neutral it is blue. ठीक है, but in basic medium it turns to कैसा हो जाएगा, pink. So these are also some color natural. Okay, natural indicator. litmus भी natural है. okay, तो एसिडिक में रेड हो जाता है और बेसिक में ब्लू हो जाता है. बट टर्मरिक एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता, येलो कलर, बेसिक में रेडिश ब्राउन हो जाता है. रेड कैबेज एसिड में रिमेन्स रेड, बट इन बेसिक मीडियम इट टर्न्स टू ग्रीन. सेम इज द फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, इट रिमेन्स ब्लू इन द एसिडिक मीडियम, बट इन बेसिक मीडियम इट टर्न्स टू पिंक. ओके, नाउ ये तो थे कलर. सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर इज the indicators shows okay indicators giving or showing different smell. और स्मेल का दूसरा वर्ड है ऑर्डर. ठीक है, ना. ओके, द फर्स्ट इज अनियन. करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है अनियन की, सबको पता है. अनियन खाते हैं तो स्मेल आ जाती है, हाथ से काटते हैं, कट करते हैं आप किचन में तो स्मेल आ जाती है. सो दिस अनियन हैव अ करेक्टरिस्टिक स्मेल. बट इसको अनियन को क्रश कर लीजिए, उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा लिक्विड, उसमें एक स्ट्रिप कपड़े की भिगा दीजिए तो उसमें आ जाएगा. उसको आप अगर एसिडिक मीडियम से चेक करते हैं, एसिडिक और बेसिक, सो द स्मेल, अनियन की जो स्मेल है वो एसिडिक मीडियम में रहेगी, है ना. इट रिमेन इन दिस मीडियम. एसिडिक मीडियम में स्मेल रहेगी, बट इन बेसिक मीडियम द स्मेल कंप्लीटली
destroyed. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे हाथ में अगर स्मेल आने लग गई है तो हम उसको बेसिक सॉल्यूशन से साफ कर लेंगे सोप से, तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी. सो स्मेल ऑफ अनियन रिमेन इन द एसिडिक मीडियम बट इन बेसिक मीडियम इट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. इसको सिंपल सा हम अगर चेक करना चाहें, सो वी कैन टेक 1 or 2 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनी एसिड, है ना, उसमें एक ड्रॉप और 2 ड्रॉप ऑफ अनियन डाल देंगे का, so smell will not go, it will remain in that, but in basic medium it will destroyed. Okay, the next is vanilla. Everyone knows that vanilla essence. ठीक है, वनीला आता है आइसक्रीम, उसके अंदर जो स्मेल आती है वनीला स्मेल, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम इट रिमेन्स, रह जाती है, ठीक है, रिटेन और रिमेन, ठीक है, रिटेन इट्स स्मेल. एसिडिक मीडियम में वनीला की कोई स्मेल नहीं जाती, सेम स्मेल आती है, बट इन बेसिक मीडियम वनीला एसेंस विल लूजेस इट्स स्मेल. ठीक है, तो हमने जैसे अभी अनियन के लिए पढ़ा, एसिडिक मीडियम में इट रिमेन्स इट्स, है ना, स्मेल इज रिमेन, बट इन बेसिक मीडियम कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. सेम एज वनीला एसेंस, एसिडिक मीडियम में इसकी रिटेन रहती है, मतलब नहीं जाती है, बट इन बेसिक मीडियम इट्स गोज. ठीक है, इट लूजेज इट स्मेल. नेक्स्ट इज क्लोव ऑयल. क्लोव जानते हैं, लौंग, ठीक है, लौंग का तेल. ठीक है, सो क्लोव ऑयल इन एसिडिक मीडियम डिफरेंट ऑर्डर, एक अलग तरह की स्मेल आएगी, और बेसिक मीडियम में अनदर टाइप. इसका मतलब हुआ कि एसिडिक मीडियम में अलग खुशबू आएगी, स्मेल आएगी, और बेसिक मीडियम में अलग आएगी. क्लोव ऑयल की अलग अलग स्मेल आएगी, एसिडिक मीडियम में अलग, बेसिक मीडियम में अलग. ओके, सो दीज आर सम indicators which show a different smell or odor: onion, vanilla essence and clove oil. Okay, now we are here to study about general characteristics. ठीक है, here is the general कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स. एसिड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या क्या खास बातें हैं, खास बात. ओके, द फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में भी स्टडीड, दैट इज इट हैज सार टेस्ट. सिंपल सी बात है, ये तो सार टेस्ट होता ही है. ठीक है, द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसिड टर्न्स blue litmus into red. ब्लू टू रेड. ठीक है, और रेड होगा तो कोई चेंज नहीं होगा. रेड लिटमस पेपर अगर एसिड में चेक करेंगे तो रेड ही रहेगा, बट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड. ओके, थर्ड, ओके, मिथाइल ऑरेंज. अभी हमने पढ़ा था मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड. ऑरेंज कलर होता है, मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर होता है, बट इट टर्न्स रेड इन एसिडिक मीडियम. तो ये भी एसिड की खास बात है कि वो मिथाइल ऑरेंज के ऑरेंज कलर को रेड कलर में चेंज कर देता है. खास बात, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. फोर्थ क्या है, एसिड्स आर करोसिव इन नेचर. एसिड्स आर करोसिव इन नेचर. करोसिव मीन्स डिकम्पोज, डिके कर देते हैं, डिकेइंग नेचर है इनका, कि वेन एवर इट फॉल्स ऑन द क्लॉथ इट मेक्स द होल्स इन दैट. ओके, इट रिएक्ट विद द मेटल, ओके, एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस.
ओके, सो हियर दे प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन. अगर स्किन पे टच हो जाएगा इट विल क्रिएट अ बर्निंग सेंसेशन. सो बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन, ठीक है, एंड मेक्स होल इन क्लोथ, ठीक है. ओके, एंड ऑल्सो अटैक्स, ये अटैक्स मेटल्स एंड, ओके, मेटल एंड क्या कर देंगे उनको, रिलीज हाइड्रोजन गैस. मतलब करोजिव नेचर होता है, तो करोजिव नेचर में हम लिख रहे हैं क्या, बर्निंग सेंसेशन है, ये हमारी स्किन पर सेंसेशन बर्निंग होती है, ऐसा लगता है जल जाएगा. मेक्स होल इन द क्लोथ और अटैक्स ऑन मेटल्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस. ओके, एंड दैट इज वाई ड्यू टू दिस corrosive nature of acids, these are kept in glass or ceramic container. Okay, kept in glass or ceramic container. क्यों? Because they have corrosive nature, they attacks the metal container and makes the holes decompose कर देंगे and release the hydrogen gas और metallic salt बनाएंगे. इसलिए they are kept in glass. आपने देखा होगा in chemistry labs, so all the acids and all the other chemicals are also kept in glass or ceramic container just because due to the corrosive nature, acids are kept in the glass container. Okay, next here is the 5, that is what, रिएक्शन. अभी हमने पढ़ा ना, रिएक्शन मीन्स अटैक मेटल एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. तो रिएक्शन विद मेटल. सो व्हेन वी रिएक्ट द मेटल, एनी मेटल विद एसिड्स, so what happens? So let's suppose here Zn when react with H2SO4, one of the sulfuric, this is what the king of acids, sulfuric acid, है ना, strongest acid, ठीक है. What happens? So zinc sulfate and release hydrogen gas. What forms zinc sulfate and release hydrogen gas? Okay, okay, so when zinc is react with hydrogen chloride, hydrochloric acid, then it forms zinc chloride ZnCl2 and release hydrogen gas. So we have to make it balance, put 2 here. Okay, when, so generally we can say when metal react with acids forms, क्या बन रहा है ये, metal salts and release hydrogen gas. ठीक है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं. एरो इज शोइंग दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेफ्ट, दैट इज व्हाट वी हैव सीन द रिएक्टिविटी सीरीज. हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी एक बार. सो रिएक्टिविटी सीरीज में वी हैव सीन सम ऑफ द एलिमेंट्स आर बिलो द रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, सो द एलिमेंट विच आर बिलो द element which are below hydrogen in reactivity series, जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से बिलो हैं, they will not react with acids. Okay, so not react with एसिड्स, बिकॉज क्यों नहीं कर सकते हैं, वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन से नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, दे कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड बिकॉज दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ओके, फ्रॉम
एसिड्स। समझ में आ गया? सो दैट मीन्स व्हाट, कॉपर है ना, फॉर एग्जांपल कॉपर कैन नॉट रिएक्ट विद HCl और H2SO4, ठीक है। द मेटल विच बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज डू नॉट रिएक्ट विद एसिड कैन नॉट डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं था, हमने जो हेडिंग पढ़ी थी कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, सो विद दिस मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म्स मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे मेटल, द मेटल which are very less reactive, which are below the hydrogen in reactivity series, do not react with the acids. Understand? Okay, revise the topic and answer the questions. Thank you.